Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today from this lecture, I am going to start your new chapter, that is chapter number 11, books of original entry, cash book. Journal has been completed in my last lecture, and today you will get the assignment sheet of journal also. Now from this lecture, I am going to start your new chapter, that is cash book. See, what is cash book, beta? What is the meaning of cash book? This book is used to record all the transactions related to cash receipt and cash payment. After journal, जो next book बनती है that is cash book. और cash book is used to record all cash receipt and cash payment. The number of cash transaction is quite large in every business and it is quite unpracticable and inconvenient to record all cash transaction in journal. So it is therefore necessary to maintain a separate book for cash transaction. So this book enables a businessman to know the balance of cash in hand and cash at bank at a point of time. कैश बुक में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ वेरी hard to record the transaction in one book, so we have transferred it in different books. Of the number of books in which we transferred, इसमें one of the book is cash book, which record all the cash related transaction and we are able to know the balance of. See, it also gives information. Cash book also inform the daily receipt, payment and the closing cash balance at the end of each day. Hence this is a very popular and is maintained by all the organization, big or small. तो कैश बुक सभी मेंटेन करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं और ये एक बहुत पॉपुलर बुक है. Now see, कैश बुक का सब्सिडरी बुक एंड द प्रिंसिपल बुक. कैश बुक achieves a dual purpose. कैश बुक का ड्यूअल पर्पस है. whenever we prepare cash book, then there is no need to prepare separate cash account. So it is both a subsidiary book as well as principal book. When a cash book is maintained, transactions of cash are not recorded in journal. Then there is no need to maintain a journal or there is no need to maintain a separate account of cash. All the transactions related to cash will be first time recorded in cash book directly without making journal of that transaction. But when a cash book is prepared, cash account is in the ledger is not prepared. As well as जो कैश अकाउंट बनाते हैं लेजर में, उसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं. whenever we are preparing कैश बुक. तो ये एक वास्ट बुक है जिसके थ्रू आप जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स. इन दिस वे कैश बुक रिप्रेजेंट द कैश अकाउंट एंड हैंस बिकम द प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंट्स. एज सच द कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज इन पर प्रिंसिपल बुक. नाउ सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक. कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है? The cash book is a perfect substitute of cash account. In both of these, cash transactions are recorded date-wise in order of occurrence. Both of these enable a businessman to know the cash balance or any desired date. See the difference between cash book and cash account. Cash account, it is an account in the ledger. Cash book, it is a separate book maintained for recording cash transaction. ये अकाउंट किस में लेजर में बनाया जाता है? कैश अकाउंट. और कैश बुक इज़ अ सेपरेट बुक जो कि मेंटेन करते हैं टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन. कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल. कैश अकाउंट में जो भी पोस्टिंग होती है वो जर्नल के थ्रू होती है. और जबकि आपकी कैश बुक इज़ एन ओरिजिनल बुक, तो उसमें जो है कैश ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश बुक to various account in the ledger. Then when transactions of cash are recorded in journal, it is necessary to open a cash account in ledger. जब भी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हम कैश अकाउंट ओपन करें लेजर में. When transactions of cash are recorded in cash book, there is no necessity to open a cash account in ledger. ठीक है. It only records one aspect of transaction, that is cash. कैश अकाउंट सिर्फ एक कैश एस्पेक्ट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, जबकि कैश बुक आपके दोनों रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करती है, वेदर कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन. Now see types of cash book. Cash book may be of 4 types. Single column cash book or one column cash book for recording cash transactions only. Single column cash book में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आता है. नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम. ये डबल कॉलम कैश बुक है बेटा. देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक और लास्ट इज पेटी कैश बुक. Each business use any one type of cash book. Now but in your syllabus there is only two books, that is single column cash book and double column cash book. And petty cash book यही आपके चैप्टर में डिस्कस्ड है in your class 11th. Now see number 1 single column cash book.
in its format is similar to an account with one amount column on cash side. कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल को फॉलो होता है इसमें, ठीक है. तो नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक. डेट नंबर फर्स्ट, पर्टिकुलर रिसिप्ट 2, वाउचर नंबर 3, LF 4, अमाउंट 5. देन इधर आपके क्रेडिट कॉलम में डेट 1, पर्टिकुलर पेमेंट 2, वाउचर नंबर 3 and LF 4 and amount 5. It is clear from the above format that the columns on both sides of the cash book are similar to each other. जो भी रिसिप्ट्स हैं उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी पेमेंट है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. डेट, डे, मंथ एंड द ईयर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. पर्टिकुलर, द नेम ऑफ द अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और पेमेंट हैज़ बीन मेड इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. मीन्स आपका कभी भी कैश बुक में कैश वर्ड नहीं आता है. अगर आपने कैश परचेज़ करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के बाई साइड में आपका बाय परचेजेस आ जाएगा एंड अमाउंट विल बी देयर इन द बुक. और अगर आपने सेल करा है तो सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट विल बी देयर इन द कॉलम. इज इट क्लियर? तो दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट को हम कैसे पोस्ट करते हैं. देन पर्टिकुलर के बाद वाउचर नंबर, इसमें नंबर आ जाता है आपका वाउचर का, जिसमें आप सर्टिफाइंग रिसिप्ट्स लगाते हैं और रिटर्न जो कि रिटर्न होते हैं इन द कॉलम. देन लेजर फोलियो LF, दिस कॉलम रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर द पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन मेड. देन अमाउंट, द अमाउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अमाउंट पेड आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. जो डेबिट साइड में हम अमाउंट रिसीव को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में अमाउंट पेड को रिकॉर्ड करते हैं. नाउ फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश बुक. Cash book itself is a cash account, so it is a real account and the rule of debit and credit on the same as the debit what comes in and credit what goes out. Thus cash received is recorded on the debit side of the cash book and cash paid is recorded on the credit side of cash book. If opening balance of cash is given, अगर कैश का कोई opening balance given है तो it is recorded as to balance brought down. और अगर आपका कोई जो है डेबिट साइड में आप आ जाता है टू वॉल बैलेंस बॉट डाउन. सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड. सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई भी रिकॉर्ड आपका कैश रिसीव्ड एंड कैश गिवन का नहीं आता है, नहीं कैश डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड भी नहीं आता है सिंगल कॉलम. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर. और जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं होता. When an entry is recorded in cash book, a corresponding entry is recorded in the ledger. जब कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी corresponding entry ledger में रिकॉर्ड हो जाती है. For example, if 2000 are received from Gopal, the receipt entry is passed in the cash book and Gopal account is credited in the ledger. Is it clear? Then now see balancing of cash book and carry forward. Cash book may be balanced daily, weekly or monthly depending on the need of the business. Normally it is balanced daily in order to tally the balance shown by the cash book with that of the actual amount of cash in the cash box. Following points should be taken into consideration while balancing the cash book. The receipt column will always be bigger than the payment side. Receipt side हमेशा ज़्यादा होता है पेमेंट साइड से. डिफरेंस जो भी होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, हम उसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन. जो डिफरेंस आता है डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो भी डिफरेंस आएगा इट विल बी ऑन द बाई साइड और बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम उसको नोट डाउन करते हैं. टोटल करते हैं दोनों साइड्स का, जो बड़ा वाला टोटल उसमें छोटा माइनस करते हैं. उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, जब कैश आएगा तभी तो पेमेंट देंगे आप. द क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड. करेंट ईयर के लिए वो बाय बैलेंस कैरी डाउन है और नेक्स्ट ईयर के लिए टू बैलेंस बॉट डाउन हो जाता है वो, जिसमें हम जो है रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को. नाउ सी कैश बुक ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस. येस, कैश बुक हमेशा जो है डेबिट का बैलेंस शो करता है बिकॉज वट एवर यू रिसीव देन यू आर एबल टू पे द थिंग्स. तो ऑलवेज एक्सीड डेबिट साइड हमेशा एक्सीड करता है क्रेडिट साइड को. इट इज़ बिकॉज अ बिजनेसमैन कैन नॉट पे मोर कैश दैन वॉट ही हैज़ गॉट. If the money is paid by borrowing from someone, it will be first to be recorded on the receipt side and only then it will be shown on the payment side. ठीक है. Hence the cash book always shows the debit balance or at the most nil balance but can never show a credit balance. Now see question number 1 of your book. या आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है. It is unsolved question. Enter the following transaction in a single column cash book. May 1, commence business with cash. First is commence business with cash. Then number 3, May 3, bought goods for cash, paid carriage, sold goods for cash. Commence business with cash, cash comes in, balance brought down हो गया ये, to balance brought down. Bought goods to for cash, cash goes out, buy side आ जाएगा, buy purchases.
पेड कैरेज, ये भी एक्सपेंसेस हैं. कैश गोज आउट बाई साइड आएगा. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑन द डेबिट साइड. रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द डेबिट साइड. पेड टू शिव कुमार ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि पेमेंट है ये. कैश सेल ऑन द डेबिट साइड. Purchase of furniture for cash for office use on the debit side. Paid for advertisement on the debit side. Purchase goods from Mahesh on credit. Credit transaction record नहीं होते हैं in the books. Paid to Mahesh, it will be recorded. Buy side आ जाएगा by Mahesh. Paid wages 400. Received for commission 1500. और withdrawal for personal use that is 2200. Drawing हो गया ये. And paid salary that is 700. ये भी हमारा क्या हो गया, expense हो गया. It will be on the सारे expenses जितने भी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो जो भी कैश वगैरह जा रहा है जो आउट है उसको आप बाई साइड रिकॉर्ड करेंगे. सीधा सोल्यूशन बेटा. कैश बुक में आपने सबसे पहले डेट, देन पार्टिकुलर, देन LF, कैश रुपीज़, देन बाई से क्रेडिट साइड. यहाँ पे डेबिट साइड खत्म होता है. डेट, पार्टिकुलर, LF एंड कैश रुपीज़, ये क्रेडिट साइड. अब सी सबसे पहले बोला कमेंस बिजनेस विद कैश. तो कैश कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो आपने टू साइड में लिख लिया. May 1 कैपिटल अकाउंट 25,000. देन बॉट गुड्स फॉर कैश May 3. तो May 3 आपका बाई साइड आ गया. परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 10,000. देन पेड कैरेज, ये भी एक्सपेंस है तो बाई साइड ही आएगा. May 3 कैरेज अकाउंट 200. सोल्ड गुड्स फॉर कैश दैट May 4 हो गया ये. सेल्स अकाउंट 6,000 डेबिट साइड आ गया ये. देन रिसीव्ड फ्रॉम राम से रिसीव्ड हुआ. मनी कम्स इन, तो ये आपका राम 1000 May 10 आ जाएगा इधर. एंड देन पेड टू शिव कुमार दैट इज मनी गोज आउट. तो ये बाई साइड आ जाएगा. May 12 में से शिव कुमार 2600. कैश सेल, देन सीधा नेक्स्ट पॉइंट बेटा May 15 कैश सेल से. तो ये आपके टू साइड आ जाएगा. सेल्स अकाउंट 8400. परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज़, तो दैट इज़ एडवर्टीजमेंट अकाउंट. फर्नीचर परचेज करा ऑफिस यूज़ के लिए, फर्नीचर अकाउंट 5000. देन पेड फॉर एडवर्टीजमेंट अकाउंट 500. परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, ये नहीं आएगा बेटा क्योंकि आपका ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है. पेड टू महेश, इट विल बी देयर. महेश 4000. देन पेड वेजेस, ये भी आपका कैश गोज आउट है, बाई साइड ही आएगा. वेजेस अकाउंट 400. देन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ दैट इज़ ड्राइंग अकाउंट 2200. पेड सैलरी, ये भी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट 700. ठीक है. तो ये आपकी सारी अमाउंट का पोस्टिंग हो गई. देन आपने जब इसको पोस्टिंग कर दी सैलरी के बाद, देन हमने टोटल करा दोनों साइड का. तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा. क्रेडिट का टोटल काम होगा तो डिफरेंस इज बैलेंस कैरी डाउन 16,300 आया. तो उसको हम May 31 एंड ऑफ द मंथ लिखते हैं. May 31 और बैलेंस कैरी डाउन दैट इज़ 16,300. और फिर उसको आप जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में बैलेंस बॉट डाउन करते हैं ऑन द डेबिट साइड. तो दैट इज़ June 1 बैलेंस बॉट डाउन दैट इज़ 16,300. नोट मैंने इसमें बता दिया आपको. May 20 में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कैश से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने उसको रिकॉर्डेड नहीं करना. डू दैट. पहले आप थियरी नोट डाउन करिएगा प्रॉपर्ली, फॉर्मेट बनाइएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक लिख करके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिएगा कॉपी में. डू द वर्क प्रॉपर्ली इन योर कॉपी और जल्दी कॉपी मेंटेन करिए. एज योर स्कूल विल ओपन ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आई वॉन्ट योर कॉपी विद कंप्लीट वर्क. तो कंप्लीट योर वर्क इन टाइम. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. नोट डाउन करना एवरीथिंग इन योर कॉपी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.